व्हाट इज वैलेंसी? सर आपने नहीं कराया। कोई बात नहीं, बोलो। वैलेंसी Combining capacity of an atom or element is called valence. okay. Now what is the core electron? Core electron, बोलो। सर पता नहीं है। Core electron is the electron except the valence electron. Outermost electron is known as core electron. ये लिखवाया है ना? फिर valence electron. ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताइए कार्तिक। An atom which gives the electron. हाँ? Which gives the electron. The electron in outermost shell. The electron in outermost shell is called valence electron. Okay, Thomson's atomic model बताइए शिवांशी। इलेक्ट्रॉन कोडिंग मॉडल। है? इलेक्ट्रॉन कोडिंग मॉडल। हाँ बताओ दोनों, उसके दो है ना पोस्टुलेट, दोनों बताइए। तो हाँ बोलो। An atom is a positively charged pair in which electrons are embedded in it. An atom is electrically neutral as total positive charge is same to the total negative charge of electron. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज द टोटल नेगेटिव, ठीक है, ये बात सही है। नाउ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बताइए। It is based on the solar system. अब तीनों पोस्टुलेट बताइए, बोलो दिव्या। Electrons revolve around the nucleus. Electron is about 2000 times smaller. ये सब नहीं बताना है, आपको मॉडल बताना है। बोलो कार्तिक। In an atom, most of the alpha rays pass through. So it conclusion. कंक्लूजन मिलेंगे एटॉमिक मॉडल सर किसका? रदरफोर्ड का। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट बोलो। in an atom, most of the alpha rays passes through it. Most of the alpha rays passes through. अल्फा रे से क्या लेना है, एटॉमिक मॉडल पूछा जा रहा है। There is a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all mass of the atom resides in the nucleus. The electron revolve around the nucleus, or the size of nucleus is very small as compared to size of atom. ये ठीक है, अब रिपीट करो देवांशी। There is a positively charged electrons that revolve around the nucleus. पॉजिटिवली चार्ज, Electrons. पॉजिटिव से चार्ज अलग ही है आपका वो। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। Sir, there is a special orbit known as discrete orbit of electron which is allowed in an atom. When an electron revolves around the discrete orbit, it will not radiate him. ठीक है। नाउ खुशबू, बोर एंड बरी रूल। Okay, now Niels Bohr atomic model. क्या पूछेंगे बता दोगी? ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दोगी, बोलो। अच्छा, दूसरा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो। सही है, को बता दिया। अच्छा, नाउ बोर एंड बरी रूल। And there is a special type of force. It's more than body. The maximum number of बताइए ये कुछ, बोलो। The maximum number of electron in the outermost shell is 8. पहले रूल सीरियली बताओ। याद क्यों नहीं है? उदयवीर, बोर एंड बरी रूल। हाँ बोलो। The maximum number of electrons in the outermost shell of an atom is given by the formula 2n square. Electrons are बोलो अनुराग।
Sir, the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number. Second, the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell in outermost shell is 8. The electrons can not be accommodated in a given cell unless the inner cells are filled. It is very correct. What do you mean by atomic number? The number of the atom. The mass number of the atom. बता नहीं रही हो कुछ, जैसे विजिटर लॉन्च में आए हो कि घूमने घामने यहाँ पे जैसे हॉल है कोई। हाँ बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर। कह दो कि भाई हमको इसी बारे में टेस्ट दिया नहीं सर, मुझे क्या मालूम, जिन्होंने दिया उनसे पूछिए। हाँ बोलो। Yes, the number of protons. What is mass number Karthik? The total number of protons plus total number of neutrons is called mass number. ठीक है। What is atomic mass of helium? Helium 4. 4 क्या? 4U. 4U. What is alpha particle? Alpha particles are the nucleus of helium. Okay. What do you mean by radioactive elements? These elements are dangerous in nature. ये 7वां क्वेश्चन है जिसमें आप ब्लैंक हो, बिल्कुल जैसे फ्री स्टाइल बैठी हो, कुछ लेना देना ही नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ये सभी 9th कहीं हैं, 9th की क्लास में हो, क्या सोच रहे हो कि कहीं और बैठी हो? बोलो, रेडियो एक्टिविटी। ये बोल्ड आंसर है, आप बताइए। बोलो। हाँ बोले। Spontaneous emission of alpha beta particles and energy of gamma is called radioactivity, and this element is called radioactivity elements. बोलो, उदय भी ने सही लिखा है, बोलो वैसे। Sir, these are unstable elements, which have heavier nuclei from which alpha beta particles and gamma radiation spontaneously emit. This is called radioactivity. Radioactive elements, and it is called radioactivity, and the elements are not radioactive elements. What is cathode ray? Cathode ray is a highly evacuated glass tube in which there are 2 electrodes. The negatively charged electrons are bombarded from the cathode ray and they travel in a bluish green ray to the ठीक है। Now, there are certain definitions regarding this chapter. तो पहले मैं ये लिखाता हूँ और फिर इन्हीं का टेस्ट लूँगा। ये मैं पहले ये 20 definitions लिखाता हूँ, इसको आप लिखते जाइए। It is highly evacuated glass tube having 2 electrodes. One negative electrode and other positive electrode. When very high voltage is applied across it, then beam of electron comes out from cathode, that is negative electrode, and get discharged
at anode, that is positive electrode. तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? इट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जैसे कि ट्यूब लाइट एक कैथोड रे ट्यूब है। तो इसमें क्या होता है? इवोकेटेड का मतलब क्या होता है? इवोकेटेड मतलब इवैक्यूएटेड का मतलब इसकी सारी गैस निकाल दी गई है वैक्यूम में। इवैक्यूएटेड का क्या मतलब है कि जैसे इस कमरे को पूरा खाली कर दो, सब लोगों को बाहर निकाल दो, सारी कुर्सी मेज बाहर निकाल दो, सब कुछ एक समान न रह जाए, तो उसे क्या कहते हैं? इवैक्यूएशन, निष्कासन। क्या कहते हैं? इवैक्यूएशन। ठीक है, इट इज ये भी कह सकते हो कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। ओके, हाँ बोलो। सर फिर वो रेस होते हैं कि जो कैथोड रेस वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है। तो सबसे पहले अभी हम ट्यूब देख रहे हैं ना, इसका क्या नाम है? कैथोड रे ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखो, तो यहाँ पर कितने वोल्ट लगाए जाएंगे बताओ? बहुत ज्यादा वोल्टेज होंगे क्या? सर नीचे ना, बोलो, ये बात समझ में आई? 10,000 वोल्ट। और ये जो माइनस है, तो क्या ये माइनस होगा और ये प्लस होगा? तो जो माइनस है इसे क्या कहेंगे? क्या कैथोड? और ये एनोड। एनोड। और यहाँ से क्या निगेटिव की बीम निकलेगी और वो इधर चलेगी? सर यहाँ से भाई निगेटिव से ही तो निकलेगी। तो बीच में होता है ना कैथोड। कहीं वो तो सभी ने गलत बनाया, कैनाल रे को कैथोड बना रहे हैं। तो ये है कैथोड रे, और इसी को इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैथोड रे है। इसका नाम क्या है? जो निगेटिवली चार्ज है, इनका नाम क्या है? कैथोड रे। और इस ट्यूब का नाम क्या है? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ कैथोड रे beam of electron which comes out from cathode is called cathode ray. Repeat करो। Beam of cathode that comes out the cathode. बोलो, आप बोलो, आप बोलो। beam of electrons comes out from the cathode is known as cathode. हाँ ठीक से सुनो, सही बोला है। Beam of electrons which comes out from cathode and moves towards, किधर मूव करता है? Move towards anode is called cathode ray. Canal ray positively charged gaseous ions, positively charged gaseous ions which pass through, किससे पास हो जाते हैं? परफोरेटेड कैथोड, है ना? परफोरेटेड, सर ये था हाँ, सर डेफिनेशन। परफोरेटेड कैथोड से पास हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस, और क्या करते हैं बताओ? Scintillation on Zn। प्रोड्यूस सिंटिलेशन, यानी चमक पैदा करते हैं ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज कॉल्ड कैनाल रे। नाउ जब कैनाल रे की बात आएगी तो ये परफोरेटेड है, परफोरेटेड कैथोड है ये, और यहाँ पर माइनस प्लस, ये 10,000 वोल्ट है। बहुत ज्यादा होता है, ये 220 वोल्ट है, इसी में झटका लग जाता है। 10,000 यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, दोनों पिन के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है 220 वोल्ट है। 10,000 वोल्ट पे उंगली लगाओगे कोयले की तरह काले हो जाओगे, राख, उतना समय है बस।
तो इसमें क्या होगा, क्या H+ आयन होंगे जो चलेंगे, और वो इससे पास हो जाएंगे और इधर निकल आएंगे। क्या इन्हीं को कैनाल रे बोलेंगे? बताओ। पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन को। बाकी तो इलेक्ट्रॉन इससे चलते ही है, निगेटिव से। निगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन को उधर चलने दो, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव आयन इधर मूव करके, उनका नाम क्या है? और ये कौन सी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड। हाँ, और इसी पे चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है कैनाल रे। नाउ नेक्स्ट इज सब एटॉमिक particles. So the particles which are present inside atom, that is electron, proton and neutron. डेफिनेशन पर उदयवीर का बहुत अच्छा कमाल है, इनकी सभी डेफिनेशन 10 की 10 है। इससे पता चलता है इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि डेफिनेशंस के पिलर पर ही कोई चैप्टर खड़ा होता है। सो इनसाइड एटम इज कॉल्ड, बट वो फार्मूले में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। इट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव elements. Now, unstable heavier nuclei, वो किसके बाद के होते हैं? बोलो सर क्या? जो Post-uranic element. पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट, हेवियर न्यूक्लियाई। कुछ लोगों से पूछो ना तो ऐसे बताते हैं जैसे कि जो यहाँ सिखाया गया वो कचड़ा घर में फेंक दिया गया, इधर उधर देखते थे कहाँ फेंका सर। कुछ लोग ऐसे पेश करते हैं, सर आपने इस दिन ये बताया था, ये लीजिए इसका आंसर। तो हमको जो सिखाया जाए, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेबल एट ऑल द टाइम्स। अनस्टेबल हैवियर न्यूक्लियाई एमिट्स अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा। सर ये साइन लिखने से मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं, यही अल्फा, ये बीटा, गामा रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जो पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स है। पोस्ट यूरेनिक का मतलब समझते हो? यूरेनियम के बाद वाले। देख लो सर, येलो है। आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर से समझो, जो चीज नहीं समझ में आई फिर से समझो। देखो, कैथोड एक डिस्चार्ज ट्यूब है। मतलब क्या होता है कि एक हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड मतलब समझती हो? जो वैक्यूम पंप से सारी गैस निकाल ली हो तो उसको कहते हैं इवैक्यूएटेड। हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये इवैक्यूएटेड है। इसको ठक से मारो तो आवाज आती है बड़ी तेज, इसका मतलब इसमें वैक्यूम है, सारी गैस निकाल ली गई। highly evacuated glass tube having one cathode and one anode, one negatively charged electrode and one positively charged electrode, from which in which
beam of electron starts from cathode and get discharged at एनोड। जो यहाँ से निकले भाई निगेटिव निकलेगा तो कहाँ डिस्चार्ज होगा? स्पार्क समझती हो? कभी कई बार स्पार्क हो जाता है तो प्लस माइनस होता है, तो यही तो डिस्चार्ज होता है कि नहीं? तो एक बार रिपीट करो जरा। In highly evacuated gas from there is a positively charged particles known as cathode. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को कैथोड बोल दोगी? Positively charged particles known as anode. पार्टिकल मत बोलो, बोलो निगेटिव इलेक्ट्रोड। इस प्लेट को हम बोल रहे हैं, पार्टिकल से क्या लेना देना है? देयर इज निगेटिव प्लेट कॉल्ड कैथोड। फिर से बोलो। In highly evacuated gas tube, there is a negative cathode and a positive anode from which किसमें से? फ्रॉम विच मत बोलो, किसमें से? From cathode इलेक्ट्रॉन बीम कम आउट। electrons beams comes out and और कहाँ डिस्चार्ज होती है? discharge and समझ में आ गई बात पूरी? बोलो। सर कैनाल रे मत बताओ। ओके सर वो न्यूक्लियर के बाद क्या लिखा हुआ है सर? बोलो। न्यूक्लियर के बाद हेवी न्यूक्लियर एमिट्स उसमें से निकलते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते सर स्पॉन्टेनियसली हैं स्पॉन्टेनियसली अपने आप। ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल, these are nuclei of helium atom. These particles are emitted by, ये किससे निकलते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम। हाँ, it consists of, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? Consist of 2 proton and 2 neutron, ठीक है? And its mass क्या होगा? 4 units. 4u. ओके ना? सर पाइमेजॉन्स कहाँ पर होता है? पाइमेजॉन्स वो अंदर ही होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पे बैठ जाएंगे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट इज ऑर्बिट। इट इज, किसी ने स्पाइरल भी लिखा है, स्पाइरल नहीं लिखना है। इट इज सर्कुलर प्लेनर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ सही है। इट इज सर्कुलर, sir imaginary circle. लिख सकती हो, इमेजरी भी लिख सकती हो, सर्कुलर प्लेनर। सर आपने तो उस दिन मना किया था। तो बुक में नहीं लिखा था, हमने भी नहीं लिखा, इसीलिए सर्कुलर प्लेनर पाथ एक में इमेजनरी लिखा है। सर्कुलर प्लेनर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन revolve. Now, next is shell. So the certain special orbit in Bohr atomic model, ठीक है, in which are also called discrete orbit or shell. यानी जो शेल वाला कॉन्सेप्ट है वो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं है, लेकिन शेल किस में पाई जाती हैं? बोर के मॉडल, ठीक है। These are named as
देवांशी एनर्जी लेवल इंडेक्स की डेफिनेशन बताओ। The shells of the specially discrete orbits हाँ K, L, M, N, हाँ and the values is n is equals to 1 and n is equals ये सही है। दैट इज एनर्जी लेवल इंडेक्स का मतलब है these the orbits in Bohr atom are associated with fixed energy। उनकी एनर्जी कैसी होती है? फिक्स्ड एनर्जी एंड टर्म्ड एज एनर्जी लेवल इंडेक्स। ओके, नाउ न्यूक्लियस, इट इज Center of an atom. very small central part Positively central part. of atom in which all positive charged and most of the mass is concentrated here resides। जो लिखना चाहो दोनों ठीक है, Yes. ठीक है। It is discovered by, James Chadwick। बताओ किसने किया था? चैडविक ने किया? Yes, sir. Child. कि रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया। क्यों सर? रदरफोर्ड के मॉडल में तो पहले न्यूक्लियस आया है वो उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर है ना? किया, NN से था सर, समझ गया। रदरफोर्ड के मॉडल में। Electron. ना जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देवांशी बताओ। देखो आप मैं बोलूं सर? हाईली इंग्लिश मीडियम में हो तो इसीलिए हम आपसे पूछते हैं। आप बोलो, और कोई भी आपके समान नहीं है यहाँ पे, बताओ। इतना टैलेंटेड, बोलो। In James Maxwell's electromagnetic theory, as per the Rutherford's diagram, there are electrons which are continuously ये सब कुछ नहीं, बोलो Sir, देखो। ma'am. नहीं क्यों कर देती हो, बोलो। Sir, when a charged particle accelerates, its radiate energy. यही है सब। हमारा तो यही है। अब आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया उसमें? Drawback. पूरा ड्रॉबैक ही सुना दोगे क्या? When charged particle accelerates, It should it radiate energy. should भी आएगा क्या? हाँ। When Sir, it will होगा ना? it radiates energy. Now, atomic number. Total number of protons In an atom. present in nucleus of atom is atomic number of that element। एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय E plus। A. जेड तो है ना, ये क्यों बोल रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल, Sir, A से क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ए से मास नंबर। मास नंबर की यूनिट क्या होती है देवांशी? kg. बोलो। Mass number is kg Sir, meter U. square. सर U। C होता है ना? ये बोलेंगे, ये कोई मास। देखो करेक्ट। कार्तिक में होता यूनिट होती ही नहीं है, हैं? वो Sir, नंबर kg है। होता ना? देखो सबसे अच्छी बात है, बोलो यूनिट कहाँ होती है, वो तो नंबर है। सर कोबाल्ट किस लिए? कोबाल्ट क्या चीज? CO, बोलो। बोलते हैं। हम्म, चार्ज भी
पूछो तो क्वेश्चन क्या है? कूलम कूलम चार्ज की यूनिट होती है। मास नंबर सर चार्ज सी होता है ना कूलम्स का। सी। okay now next is mass number, sum of protons and neutrons present in nucleus of an atom, sum of protons and neutrons present in nucleus of an atom is called mass number of element. For example, mass number of sodium is 23. It इसका कोई यूनिट नहीं होता ना, it has no unit. Atomic mass क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। So mass of an atom is called atomic mass. जैसा पिछला चैप्टर में पढ़ा था एटम्स एंड न्यूक्लियाई, atomic mass. It is expressed. सर आपने शेल में वो बोहर वाला क्यों लिखवा दिया? शेल उसी को कहते हैं, उसके पहले ऑर्बिट था, लेकिन जब बोर ने बताया बोला फिक्स्ड जो होते हैं ना ऑर्बिट, उनको शेल कहेंगे. इट इज एक्सप्रेस्ड इन यू. जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 U. हीलियम का सही कह रहे हो. और कार्बन का 12 U. सोडियम 24। सही है. और क्लोरीन 35.5 U. हाँ, क्योंकि ये U में है इसलिए इसमें लिखा जा सकता है, लेकिन जब मास नंबर की बात आएगी तब नहीं लिखोगे ना. 35 लिखोगे या 37, तब वो दोनों तरीके के अलग अलग एटम होंगे. सल्फर का 32U. ठीक है. सो इसलिए एटॉमिक मास अलग है और मास नंबर अलग है. मास नंबर इन दोनों का सम होता है. सर क्या अलग है? मास नंबर में U लिखोगे, ये मास नंबर में U नहीं लिखोगे, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन एटॉमिक मास में क्या लिखा जाएगा? यू। वैलेंसी तो अगर क्लोरीन की 35.5 हुए तो उसमें आधा प्रोटॉन है आधा. वो तो बता दिया ना, फिर से बता एवरेज दें. वेलोसिटी बताया था ना एवरेज एटॉमिक मास की 75% 35 वाले रहते हैं मास के और 37 वाले 25. फिर उसका एवरेज निकाला था, नहीं करा था? फिर से बता देंगे. अब देखो वैलेंसी, दैट इज combining capacity of an element. combining capacity of an element is called its valency. Atom either give or take or share, ठीक है, certain number of electrons in order to complete their outlet or duplet. तो एटम क्या करते हैं? एटम ठीक है डोनेट कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं. क्या और क्या कर सकते हैं? Share इन ऑर्डर टू मेटल डो। complete their octet. सही है. कंप्लीट देयर ऑक्टेट. इट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी. इफ जो भी मेटल है तो मेटल क्या करते हैं बताओ? डोनेट डोनेट एंड बिकम पॉजिटिव। देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. एंड फॉर्म कैटायन. क्या बना लेते हैं? कैटायन कैटायन का मतलब क्या? पॉजिटिव
पॉजिटिव आयन, ठीक है। वाइल नॉन मेटल क्या कहते हैं? रिसीव एंड बिकम सर कैटायन नेगेटिव होता है पॉजिटिव? पॉजिटिव। नॉन मेटल रिसीव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है। रिसीव इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वैलेंसी की डेफिनेशन सिर्फ यही है, ये नहीं है, ये आपको सिखाने के सर लिए। एलिमेंट के बाद स्लैश लगा के एटम भी लिख सकते हैं। एलिमेंट के बाद हाँ लिख सकते हो। सर लास्ट वाले क्लास में When charged particle सर वो accelerates, क्या लिखा था? जेम्स James James Maxwell, Maxwell's electromagnetic field. James Maxwell's electromagnetic theory, ठीक है। हमको लिखना है क्या सर ये? नहीं, नीचे का लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. करो, सब चीज लिखो, पूरी बात लिखो। लिख लिया ना सारा? छोड़ छोड़ के मत लिखो, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे लिखा जाता है Z है और यहाँ पर A. A, सो 2 4, ये क्या है? 3 7 ये 4 9 ये 5 5 11. 5 11 6 12 6 12 7 14 8 16 9 9 8 19 10 20 11 23 23 12 24 24 13 27 और सिलिकॉन 14। 28 जी सर, इतनी बात समझ आई? सर लास्ट का देखिए। सिलिकॉन है 14 और 28। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इधर देखो ऊपर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है?
12 and 24. वेरी गुड। फास्फोरस का बोलो बोलो, ऊपर देखो। 17 and 34. फास्फोरस 1939. बहुत बड़ी बात है। 15. तब आठवीं की याद है 15 और सही है। सल्फर ऐसा ही है, ऐसा ही और सल्फर हाँ, सल्फर एल्यूमिनियम बोलो एल्यूमिनियम बताते ही नहीं हो। एल्यूमिनियम 13 आर्गन 1840 नाउ फास्फोरस सर क्या? फास्फोरस का 1531. 31 सिलिकॉन सर 28. 1428. ओके बेरिलियम सर बेरिलियम बोलो 4 और 9, बोरॉन 5 और 11, सही है। फ्लोरीन 9 और 19, 9 और 19। कैल्शियम 20 और 40. पोटेशियम 19 और 36. आर्गन 18 और 34. याद नहीं आपको? ठीक है। हीलियम बताती ही नहीं हो, ऐसा आंसर दोगी कि किसी की हिम्मत ही ना पड़े आगे पूछने। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। यस सर। जो इसका Z है, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 हो गया। और A कितना हुआ? क्या ऊपर वाला लिखा जाएगा? यस सर। Yes, sir. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो 1 4 7 9 11 12 14 16 फिर 19, 19 20 23 24 27 एंड 28। अब इसके प्रोटॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 और फिर इलेक्ट्रॉन कितने Same. होंगे? अच्छा, जो न्यूट्रॉन होंगे क्या वो A माइनस जेड होंगे? यस सर। A माइनस Z जेड न्यूट्रॉन। तो A माइनस जेड करो। 0 2 4 5 6 6 7 8 10 10 12 12 14 14 14. अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Yes, sir. तो यहाँ 1 2 2 फिर 2 1 अच्छा, इसे अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 यानी ऑक्टेट पूरा करे या डुप्लेट, ठीक है। मेटल डोनेट ये सब क्यों करते हैं? या तो अपना डुप्लेट पूरा करें। एक है तो एक और ले ले, तो क्या इसकी फर्स्ट शेल में 2 हो जाए? तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। यदि ये एक लेता है तो इस एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव H माइनस। और यदि एक दे दे, पॉजिटिव. एक दे भी तो सकता है, कोई आ जाएगा तो एक लेके क्या करोगे? लाओ। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके सेंटर में प्रोटॉन रह गया कि नहीं रह गया? तो फिर ये H प्लस। हाँ बोलो। सर ऑक्टाहाइड्रेट क्या होता है? क्या? ऑक्टाहाइड्रेट. ऑक्टाहीड्रल का मतलब जिसके 8 फेस हो। हाँ 8 फेस हो, ये ऑक्टाहीड्रल है। सर NaCl. NaCl की तरह जिसमें 8 फेस है, ये है।
8 फेज, 4 फेज ऊपर, 1 2 3 4 4 ऊपर है, 4 नीचे, ये आपका है। और जब बीच में भी तो है, बीच वाले नहीं मानो, बिल्कुल वैसा हो तो ही ऑक्टाइडल, समझ आई बात की नहीं? तो ऑक्टाइडल का और हमारे पास कुछ दूसरा नहीं है, बस वही है ऑक्टाइडल, ठीक है। तो NaCl ऑक्टाइडल होता है स्ट्रक्चर इसका, रखा होगा तो आगे की क्लास में दिखाया जाएगा। अब देखो ये बताओ ये क्या करेगा? नहीं देगा सर। कुछ नहीं लेगा, इसका डुप्लेट पूरा, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 0, इसका आयन क्या हुआ? प्लस, कुछ भी नहीं, जब न ले रहा है न दे रहा है, तो सर पॉजिटिव ही तो है। मतलब कुछ नहीं, वो हीलियम है, आयन तो नहीं रहेगा ना, आयन पे चल जाता है। देवांशी बताओ, अब ये 2 1 है, अब ये क्या करेगा? 1 देगा कि लेगा? बताओ तो सीखोगी। देगा। अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है तो इस पे क्या चार्ज आएगा? देगा तो माइनस। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, देने से माइनस आता है क्या? इलेक्ट्रॉन तो खुद ही निगेटिव होता है, तो क्या उसके सेंटर में प्रोटॉन नहीं बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन ले थोड़ी ना रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, निगेटिव चीज तुम दे दो किसी को भाई, निगेटिव तो क्या चार्ज आएगा बताओ? प्लस। तो क्या लिखे यहाँ पे? ली प्लस Li प्लस, क्या बोलोगी? Li। अब बोलो इसकी वैलेंसी क्या है? 1 एक और पूछेंगे आपसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 2 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताया आपने, ठीक है। अब बताओ ये क्या करेगा? सेकंड सेल में ये 8 तो बना नहीं सकता है, 6 को इसको दे पाएगा क्या? भाई क्या तो मेरे पास 2 रुपए हैं, 6 रुपए कोई दे दो 8 हो जाए, कोई इतना सीधा समाज तो है नहीं, तो इसे अपने ही 2 देने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 देने की होगी ना। अगर ये 2 दे देगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस मतलब क्या होगा? उस आयन का पूरा नाम बताओ। Be प्लस। नहीं बोलो। बेरिलियम कैटायन Be2 प्लस। ये ठीक बता रहे। अब दिव्या अगला बताओ, ये इसका यहाँ क्या लिखा है? 2 3। 2 3। बोलो इसकी वैलेंसी क्या है? ये 5 ले ले या तो 3 दे दे? 5 देगा। 3 दे देगा। अगर मान लो 3 देगा तो फिर 3 इसकी वैलेंसी हुई, फिर इसका चार्ज क्या आएगा? B3 प्लस। चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो अब इस पे प्लस प्लस रह गए, तो इस पे क्या आ गया बताओ? B प्लस। अनुराग इसका बताओ। सर 2 4, सर इसमें 3 प्लस क्यों नहीं हुआ? 3 प्लस लिखो ना, वो मिसप्रिंट है। सर 2 4 2 4 4 है तो 4 या तो दे दे भी सकता है, ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा। ये चीज नोट की आपने? यस सर। अच्छा, तो ये नोट कर लिया है। तो मैं बता रहा हूँ 4 ना दिया जाता है ना लिया जाता है, 4 की शेयरिंग होती है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे होती है। फिर सर आयन क्या होगा? C फिर इस पे आयन नहीं बनेगा, देख लो डैश लगा है आपके में, आयन लगा है? सर ये Z में आपने क्या लिखा है? Z कहाँ पे है ना? Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जो नीचे वाला, ये चीज Z होती है और ये क्या होती है? मास ये क्या होता है? क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन। बोलो। अच्छा कार्बन का देखो, कार्बन के पास 4 है, तो कार्बन का 2 4 है, जो आउटर मोस्ट है ना वो कार्बन पे दिखाओ, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले, इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट वाले दिखा दिया। अच्छा हाइड्रोजन पे बताओ कितना होता है? 1 तो 4 हाइड्रोजन इसके पास आ गए। ये बोल रहा है कि हम 4 तो दे नहीं सकते ना 4 दे सकते हैं, तो इसने कहा हाइड्रोजन ने मुझे एक अपना दे दोगे? उसने कहा ठीक है दे देंगे। इसने कहा ये भी बोला दे दोगे? तो दे देंगे। और ये भी पूछा तो हाँ दे देंगे, ये भी बोला तो दे देंगे। फिर उसने कहा जैसे कम्युनिटी लंच हो तो मैं भी अपना टिफिन आगे रखूं, तुम भी अपना टिफिन आगे रखो, तो हम दोनों के 2-2 टिफिन हुए कि नहीं? और ना वो दोनों तुम्हारे ना हमारे। तो अब जरा देखो, इसने इसको दिया, ये फिर ये कहेगा हमने तुमको दिया अपना टिफिन, तुम भी तो अपना दो। तो फिर ये इन चारों से कभी ले भी लेगा क्या? इसको शेयरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने दे दिया था, पिछली क्लास में हमने बताया था कि नहीं?
एक उसका एक्स्ट्रा था, उसने कहा ठीक है तुम ले जाओ क्लोरीन को। क्लोरीन में 287 थे, उसने कहा अब इस सोडियम के पास 281 थे तो परमानेंटली दे दिया था। यहाँ दिया नहीं जा रहा है, यहाँ सर आप जो बताए सर किधर इसके चारों तरफ कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक पीछे, और 4 हाइड्रोजन को बुला लिया टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर। एक से बोला तुम सामने रखो, तुम सामने रखो, तुम सामने रखो, तुम सामने रखो। अब ये 4 खुद के और चारों के 4 टिफिन 8 इसके हो गए। उसने बोला हम 8 इंजॉय कर रहे हैं, तुम भी 2-2 इंजॉय करो। समझ में आई बात की नहीं? मतलब है 4, लेकिन हम 4 और 4 और किसी के आ जाए तो क्या इसके 8 ना हो जाए? लेकिन जो आ रहा है उसको भी तो 2 मिल रहे हैं, क्या उसको डुप्लेट का लालच नहीं है? तो हमने एक सामने रखा, इन्होंने एक सामने रखा, बोलो तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट है कि नहीं? ये शेयरिंग होती है, इसको क्या कहते हैं? तो शेयरिंग में क्या इसने इलेक्ट्रॉन दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए, सिर्फ शेयर किया। हमने 4 है, 4 रुपए होंगे तो 4 और कोई शेयर कर ले तो 8 रुपीज हो जाएंगे। समझ आई बात की नहीं? तो शेयरिंग में इक्वल चलता है, आधा आधा नहीं। तो ये चीज शेयरिंग कहलाता है। जबकि सोडियम क्लोराइड में क्या था बताओ? इसका क्या था? 281 और 287। तो इसके आउटर मोस्ट का 1 दिखाओ और इसके आउटर मोस्ट के कितने दिखाओगे? 7 है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो ये इसको एक इसकी खाली जगह भी तो दिखाओगे। बोलेगा मैं ये तुम ले जाओ, फालतू है मेरे पास आउटर मोस्ट। जब इसने फालतू दे दिया, अभी मैं सोडियम का बनाऊंगा तो इसका कितना हो जाएगा बताओ? सोडियम का जरा 281 तो 1 दे देगा, ये फालतू है इसके पास। तो जब ये दे देगा तो क्या इसके प्लस प्लस आ जाएगा, और क्लोरीन एक ले लेगा तो क्लोरीन पे एक माइनस आ जाएगा, यस सर। और फिर क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाए, NaCl। और यही कॉमन सॉल्ट है। यस सर। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और कैटायन बनाते हैं? यस सर। क्योंकि ये मेटल था तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये नॉन मेटल था तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जरा यहाँ पर तो देखो कि ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो लेटर बनी हुई है, ये देखो बसीजियास सब टीपो, ये लेटर है बसीजियास सब टीपो। इसके सारे हरे वाले नॉन मेटल और ये नीले पीले गुलाबी ये सारे मेटल। 91 मेटल है, 17 नॉन मेटल। हाँ पूरे के पूरे सब के सब, ये non-metal। हाइड्रोजन छोड़ो बस, ये सब मेटल है। अच्छा। इसके इधर मेटल और इसके इधर Non-metal। नॉन मेटल। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं? कोलाइडल है। हैं? ये क्या है? अब जरा देखो, BCC का जो ये मेटलॉइड है, बसीजियास सब टीपो, ये क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड है, ठीक है कि नहीं? इधर भी देखा करो देवांशी, नहीं देखती हो तो ये क्या है बताओ? नॉन कितने मेटल है? 90। कितने नॉन मेटल है? 17। कितने मेटलॉइड है? बताती नहीं है। हाँ बोलो। बसीजियास सब टीपो 7। तो इससे आसान हो जाता है कि नहीं? ये सारा का सारा नॉन मेटल, ये सारा का सारा मेटल। बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ये टेबल बनी हुई है, इससे हम बहुत काम निकाल सकते हैं। कई बच्चे नॉन मेटल 14 है। नॉन मेटल 17। कई बच्चे इस टेबल को रिफर कर करके टॉप हो गए हैं, इनाम पा गए हैं। टेबल देखो कहाँ चला। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या बनाते हैं? बोलो। ये सही कहते हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं और क्या बनाते हैं? अच्छा, जिनकी 4 की वैलेंसी होती है वो क्या करते हैं? ये सही बात है। सर वैलेंसी तो 0 की होगी ना? देखो वो वैलेंसी 4 की हो गई, बट वो कुछ बनाएंगे नहीं ना एनाइन या कैटायन, क्योंकि शेयरिंग करोगे तो ना तुमने किसी को दिया ना किसी से लिया, तब तुम्हारे पास तो उधार नहीं है, तो शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए ये ना C4 प्लस बनाएंगे या ना C4 माइनस, ना लेना ना देना। तो 2 तरीके के बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है इसे क्या कहते हैं बताओ? केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये वाला कौन सा है? जब दिया या लिया क्या इसमें आयन बन गए क्या दोनों? ये आयनिक बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। बताओ केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स इफ, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, transferred, received, then such bonds are called chemical bonds. Chemical bonds are of 2 types. One is of covalent bond जिसमें शेयरिंग की जाए, और दूसरा है जिसमें कि दिया जाए या लिया जाए, ट्रांसफर हो जाए। What is chemical bond? तो उसे केमिकल बॉन्ड लिखो। सर ये 7
थे? बोलो। सर मुझे 7 क्या? 7 मेटलॉइड, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच के होंगे। लास्ट में आपने एल के बाद क्या लिखा है? एल के बाद सिलिकॉन, ऐसा ही, ठीक है। अब देखो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स, ठीक है, ड्यू टू या तो शेयरिंग की वजह से हो या क्या हो, डोनेशन भी बोल सकते हो या ट्रांसफर। भाई एक ने दिया दूसरे ने ले लिया, ट्रांसफर ही तो है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई। ड्यू टू केमिकल बॉन्ड क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बन सकते हैं और या कंपाउंड बन सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बन सकते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी बन सकते हैं। ड्यू टू केमिकल बॉन्ड क्या बनेगा बताओ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं और या फिर क्या हो सकते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म्ड। अगर मान लो हमने केमिकल बॉन्ड किया तो H और H ने मिलकर H2 बना दिया। H ने कहा मेरे पास एक है तुम्हारे पास एक है, बीच में रखो, दोनों का वो शेयरिंग हुई कि नहीं हुई। तो बताओ ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि कंपाउंड? सही है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और भी 5 बताओ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। O2N2 एसिड पढ़ा है कि नहीं है? एसिड ऑफ द एटॉमिक P4 पढ़ा है, होता है कि नहीं। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बने लेकिन उनमें क्या हो बताओ, आपस में डिफरेंट एटम मिलके बनाए तो उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ। जैसे H2O क्या हुआ, NH3, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, NaCl, CuSO4, CH4 बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कह दिया। सर C6H12O6 क्या है? ये भी है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अरे भाई C6H12O6 जब डिफरेंट मिलके बनाए तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और जब सेम एटम मिलके बनाए तो उसे क्या कहते हैं बताओ। एलिमेंट तो ये सारे क्या हुए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाँ ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये क्या हुए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इतनी बात समझ में आ गई कि जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बताओ दिव्या कौन से 2 तरीके के होते हैं? सर आयनिक हाँ, और कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल बताओ। पवन। NaCl कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल। CH4 सही है। सो केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सर कोवेलेंट में पॉजिटिव अभी कोवेलेंट के बारे में बता रहे हैं। आर ऑफ 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बताओ। सर CH4 में 4 ऊपर होगा या नीचे होगा, चार्ज होगा या फिर? वो चार्ज नहीं है, 4 हाइड्रोजन है। 4 बताता है एटॉमिसिटी। और बी कौन सा है बताओ, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अब इसे हम पूरा करें ना। उदय वीर अगला बताओ। सर 2 5। अब ये क्या करेगा, सर ये मतलब 5 दे देगा कि 3 ले लेगा? 3 ले लेंगे। चलो 3 ले लेगा। 3 ले लिया उसने किस, -3 तो फिर क्या लिखें, N minus 3 N 3 minus 3 माइनस। पवन इसे बताओ। सर 2 6 और इसकी वैलेंसी क्या है, 2 तो अगर 2 लेगा कि देगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लेगा कि देगा, 2 लेगा सर, है 2 लेगा। लेगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव पूरा बताओ। N2 minus N तो है ही नहीं, O2 minus O2 minus O2 माइनस। प्रत्युष अगला बताओ। सर 2 7 2 7। अब ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 लेगा। 1 ले लेगा तो क्या बनाएगा, सर
सही है। F minus। सही है, F1 माइनस, ठीक है। रावल बताइए। सर 28 28, इसकी वैलेंसी क्या है? 0, क्योंकि ना ये लेगा ना देगा। एक और आपसे पूछेंगे, सोडियम। 28 तो इसकी वैलेंसी क्या है? ये क्या करेगा? एक लेगा कि एक दे देगा, या फिर किसी से 7 लेगा? क्या करेगा ये? ऑक्टेट रूल तो है ना, वोरेनबर्ग प्रिंसिपल में कि आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? दे देगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी वैलेंसी क्या है? और ये क्या बनाएगा देने के बाद? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक निगेटिव किसी को दे दिया, तो क्या बना? सार्थक बताओ। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, तो क्या बना सोडियम में? पॉजिटिव। तो Na+। एक सार्थक और पूछेंगे आपसे, ये बताओ। 281 कैसे हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? बोलो, देवांशी बताओ। 282 ये क्या करेगा? बोलो। ये लेगा। कितने लेगा? 6 ले लेगा? 2 और ले लेगा? नहीं, मतलब बैलेंस में 2 लिखा जाएगा। नहीं, लेगा कि देगा ये बताओ, हमें ये तो पता करना है ना। लेगा। इसे है लेगा। ले लेगा, तो 2 किसी और। सर देगा ना। ये तो लेगा पूछे ना, तो उनको उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा। अगर 2 ले लेगा तो 284 में सही है, ऑक्टेट रूल हो गया। बोलो नहीं, सर 2 दे देगा। 2 दे देगा, फिर 28 बना लेगा। अगर ये 2 किसी को दे देगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? Mg2+। एक और बताओ माही। 283, फिर 3 दे देगा, फिर Al देने के बाद भी माइनस हो जाता है। मेटल है तो मेटल में माइनस तो सोचना ही नहीं है। एल्यूमिनियम को मेटल मानती हो कि नॉन मेटल? मेटल कैटायन बनाते हैं। खुशबू ये बताओ। 284 क्या करेगा ये? 4 देगा कि 4 लेगा? आप बताइए, हम क्या बताएं। दिव्या, शेयरिंग। 4 की दिया या दिया नहीं जाता, 4 में क्या हो जाती है? तो अगर SI है, अगर 4 हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या ये SiH4 बनेगा? ये चीज CH4 क्या होती बताओ? CH4 का नाम मीथेन। ये तो सब लोग नाम जानते हैं। जैसे ये मीथेन है, इसका नाम क्या है? सिलेन। क्या यही ग्रीस है जो साइकिल में लगवाते हो? कभी उससे बोल के देखना सिलेन लगा हमारे साइकिल। बहुत पता नहीं उसको मालूम ये कि नहीं मालूम। ग्रीस का नाम, ठीक है। तो बताओ, इसकी 4 की वैलेंसी है और आयन क्या बनाएगा? कुछ बनाएगा? शेयर करेगा। नहीं बनाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यही टेबल अभी आपसे बनवाएंगे पूरी, और कुछ नहीं करवाएंगे। अब बाकी का भी करवाना है। ऐसा ही तक हो गया है, अब देखो आगे का करो ना। ब्लैक बोर्ड पे बनवाएंगे? नहीं, टेस्ट होगा इसका। तो अभी हमारे कितने और बच गए? सर 6 और बचे हैं। सर वो केमिकल बॉन्ड पर। अरे 6 है। ठीक है, केमिकल। हाँ सर 4 बचे हैं ना। आर्गन तक कराना है। नहीं, पूरे ही करा देंगे। 20 तक कराएंगे, 20 तक जरूरी होता है। अब देखो, गालसी PS कल हल के का। सर बोलो। सर वहाँ पे जब हाइड्रोजन हीलियम वगैरह लिखेंगे तो उसके ऊपर वो एटॉमिक नंबर और वो सब भी लिखना है मास में। यहाँ पे इधर वाला ना, हाँ ये नहीं लिखना। नहीं सर लिखना क्या है? यही सब लिखना रहेगा। 1 2 3 4। ZA, तो ZA के बाद क्या लिखोगे? प्रोटॉन, यस सर। इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन। डायरेक्ट लिख दे या फिर H E सब लिखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या आएगा? वैलेंसी और आयन। वैलेंसी आयन, इतना लिखना होगा। तो टेबल बनाना होगा। सर आप बनाते नहीं हो? अब क्या बनाते हैं, तो चैप्टर ही खत्म होने वाला है। पी में देखो 1531 और ये 16 क्या होगा? 32, सर ये एच एच ये सब हमें लिखना होगा ना। 18 और 40, 40 19 और 20, और 20। 40, चलो जेड में 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। ये बताओ 31, 32। 35, 40, 39, 40, प्रोटॉन कितने हुए? यही है। 15, 16, ये भी वही है। देखो कुछ आपका हिंट है, जेड और पी और ये सेम है, Yes. लेकिन क्या ये ए माइनस जेड है? तो 16, 16, 18। 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनुराग बोलो। सर किसका? अच्छा सर 2 8 2 5 3 P3 प्लस माइनस P3 माइनस। ये सही है क्योंकि ये 3 ले लेगा ना। एक देवांशी को और देते हैं जिससे फिर इनका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। 2 8 6 4 बोलो, सही कह रही हो। 4 4 ठीक है। प्रत्युष 2 8 8 अरे यहाँ तो बताओ वैलेंसी। सर 2 लेगा। 2 लेगा तो बनाएगा क्या? S2 माइनस सही बता रहे हो। रावल अगला बताओ। 2 8 7 ये क्या करेगा? दे देगा। देने के बाद 8 हो जाएंगे इसके। कितने देगा? लेगा कितने लेगा? ऑक्टेट रूल होता है ना। 1 लेगा तो क्या बनाएगा? भाई एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हो क्या होता है? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? तो फिर एक निगेटिव ले लिया तो क्या चार्ज आएगा? बोलो। तो फिर आप प्लस क्यों बोलते हो? एक और आपसे पूछेंगे, बताओ। 288 इसकी वैलेंसी क्या है? ठीक है। खुशबू एक बताओ। 2 8 8 सही है। अच्छा बताना इस बार वैलेंसी 0। बोलो आप देवांशी। 1 देगा कि लेगा? देगा। गुड। अगर दे दिया तो प्लस 1 के प्लस के प्लस एक और बता दो। 2 8 8 2 2 8 8 2 2 CA 2 प्लस। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? सर लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन है देखो इसमें खींची हुई है, आप खींचना चाहो तो खींच लो, नहीं तो ऐसे ही बस सीधा सीधा। सर ये तो लिखा होगा ना क्वेश्चन में नॉर्मल ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला लिख देंगे आप। हाँ एलिमेंट ये सब ना सर। हाँ एलिमेंट के ऊपर ऊपर वाली जो चीज है वो लिख तो देंगे। बॉक्स बना लेना। ना
हाँ शुरू कर। बंद करो। सर वो जो ऊपर ये लिखना था वो लिखना था क्या? क्या बता? सर जैसे नाम लिखे हैं तो उसके ऊपर और नीचे जो नहीं वो नहीं। सीधा वो लिख दिया। हाँ